Is India a major power? Is India a superpower? Is India a regional power? Is India a middle power? Is India as an emerging power? So if you have all of these questions, this lecture is going to be very useful for you. वेलकम टू श्रीराम आईएएस, माय नेम इज सौरभ, आई एम द करंट अफेयर्स फैकल्टी हियर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा वायरल टॉपिक की, एंड दैट इज दैट इंडिया is in its own category as a major power with a cumulative score of 40, only behind America and China in the Asian region. Japan, South Korea, Russia, Australia, Singapore, all of them, if you see, they are clubbed in the category of middle powers. Then there are a distinctive category of superpowers with a score of 70 plus. और यहाँ बीच में हमें एक मेजर पावर की सेपरेट कैटेगरी दिखाई देती है, where India has simply arrived. So India's emergence as a major power is a fact. It's not an opinion, it's a fact which has been established by India's economic growth, our demographic potential, our cultural resilience, our civilizational prestige, and our future. So, all of these things make India a great power, a major power. So, there are very little differences in regional power, great power, middle powers. So, major powers, या जिसे हम कहते हैं a power with a cumulative score of 40. This idea is being touted by a very famous institute from Australia, the Lowy Institute Asia Power Index. So this is the report which everybody is quoting continuously, or aaj pure din, the entire day, this made huge headlines. So this report is basically a very comprehensive analysis of the Asian security रीजन आर्किटेक्चर, इसको पूरी तरह से उन्होंने एनालाइज किया है, सारे कंट्रीज को कुछ पैरामीटर्स पे असेस किया है. सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस पैरामीटर्स वी कैन नॉट सिंपली कॉम्प्रहेंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन India's case. So let's just look into the parameters on what basis they are going to talk about this. So ये annual Asia Power Index इन लोवी इंस्टीट्यूट ने 2018 में लॉन्च किया था. It measures resources and influences to rank of the relative power of states in Asia. So there are two parameters primarily. The index ranks 27 countries of the region, countries and territories, in terms of their capacity to shape their external environment. So this is the classic definition of power. Power क्या होती है? The ability, the capacity to shape their external environment. That is power. So on the basis of two factors, they are assessing. First is resources. So economic capability, military capability, resilience, and future resources. These four parameters are clubbed into the resources category. जिसमें India is performing very well with their economic capability. We are going to reach $5 trillion economy mark very soon. Today is the day जहाँ जो GDP का second quarter है उसका data आया है. We have the real GDP in India is simply jumped from 7.8% quarter 1 of this financial year to 8.2% quarter 2 of this financial year. मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में सबने इंडिया की देख ली. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज ए नॉन permanent member of the United Nations Security Council, yet a nuclear weapon state with aircraft carriers, nuclear submarines, and huge missiles. Resilience, we have the resilience across our northern and western borders and on our seas. Future resources are very bright. इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस है which is based on economic, diplomatic, defense and cultural ties. So economic relationship, how many free trade agreements you have, how many preferential trade agreements you have. Defense network क्या है, partnership defense की कितनी है जो military capability को complement करती हैं, supplement करती हैं. Diplomatic influence कितना है, the extent and standing of a states, foreign relations and cultural influence आपका कितना है, public opinion को आप कितना इन्फ्लुएंस करते हैं. सो ये दो जो प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है इस इंडेक्स को बनाने में. नाउ इफ यू लुक इट इनटू द केयरफुली, a very important point this year's report is making, that this is the first time पिछले कई
सालों के अंदर जहां इंडिया की इकोनॉमी का जो रेजिलियंस है, जो अट्रैक्शन है, वो इतना ज्यादा था कि क्यूमुलेटिव अगर हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के ऊपर बात करें तो वी हैव सरपास्ड द चाइनीज इनटू इट। आफ्टर अमेरिका वी आर द सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। सो यू कैन सी बिटवीन 25 एंड 2024, ये 10 साल का जो पीरियड है, इसमें इंडिया इज क्लोजिंग द गैप विद चाइना एंड स्टेडली आगे निकल गया। और बाकी के डिकेट्स देखें, 2014 से 2023 के बीच में वी क्लोज द गैप। 2012 टू 2021 वी द गैप वाज सो ह्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इकोनॉमिकली वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल एज ए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन। अगर हम बात करें, डेफिनेटली जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, जो ग्लोबल कंपनीज और इंपॉर्टेंट कंट्रीज का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका एप्पल के मोबाइल फोन्स हैं, जो सिर्फ पहले चाइना में बना करते थे। मोस्ट ऑफ देम यूज टू गेट मैन्युफैक्चर्ड हेयर, और एप्पल कंपनी ने काफी हद तक जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम किया है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल विच विल टेल यू कि ये जो सामने डेटा है ये विदाउट सब्सटेंस नहीं है, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट एंड दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम। सो इफ वी कंपेयर द सिचुएशन कि पिछले सालों में और अब की जो रिपोर्ट है उसमें क्या चेंजेस आए, तो इंडिया ने कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, वर्टिकल्स ऐसे हैं जहां काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। पिछले 3 सालों को अगर हम डेटा देखें पोस्ट कोविड, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एन एवरेज इज मोर देन 7.5%। दैट्स अ ह्यूज थिंग टू हैव। रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही इंडिया को स्टैंडर्ड एंड पुअर ने सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे सामने है, 7.8% पहले क्वार्टर में, 8.2% दूसरे क्वार्टर में। मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख रखी है। 40 दिन लगते हैं इंडियन नेवी को एक शिप को लॉन्च करने में। इट यूज टू बी 3 months अर्लियर, नाउ इट टेक्स 40 days। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलेंटरली अगर हम देखें तो पर्सनल हैं आर्मी के, वो इंडिया में है। इट्स द लार्जेस्ट वॉलेंटियर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना इज ए आर्मी ऑफ कंस्क्रिप्ट। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के और हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, यूएई के साथ हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा चल रही है, यूके के साथ हुआ। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली इज इंडियाज इंक्रीजिंग, इट वाज ऑलवेज देयर, नाउ वी आर मेकिंग स्ट्राइड्स इनटू इट। बट कुछ एरियाज हैं जहां काम और हो सकता है, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं। There we can perform a lot better. This report is saying रीजनल ग्लोबल लीडरशिप है, इसमें भी इंडिया का जो पोटेंशियल है और जो रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जो मिलिट्री और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वो ट्रांसलेट नहीं हो रही डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के अंदर। हाउ मेनी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स एवरी ईयर यूपीएससी सेलेक्ट्स? दैट टेल्स यू द रियलिटी। 50 कैंडिडेट्स भी, एस्पिरेंट्स भी आईएफएस सेलेक्ट नहीं होते। सिंगापुर जैसी कंट्रीज जहां हर साल ऑलमोस्ट 3 गुना इससे ज्यादा डिप्लोमेट्स को अपॉइंट किया जाता है, इंडिया में ये एक पॉलिसी का इशू है। नाउ इफ वी कंपेयर विद आवर कंपिटिटर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपिटिटर ऑब्वियसली इज चाइना, जिनके साथ जो गैप क्यूमुलेटिव पावर का है लगभग 30 के आसपास इसका नंबर बैठता है। तो दीज आर द कंपैरिजन स्लाइड। यस, लुक एट दिस। डिफेंस नेटवर्क बस ऐसा एरिया है जहां इंडिया एंड चाइना बाय एंड लार्ज मीट करते हैं, अदरवाइज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी चाइना इज फार अहेड। मिलिट्री कैपेबिलिटी द गैप इज समवॉट नैरोअर कंपेयर टू इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में इंडिया का 27.1 है, चाइना का 86 है, जो कि कम हो जाता है यहाँ 48 मिलिटरली इंडिया, 70 मिलिटरली चाइना। और रेजिलियंस इज ऑल्सो गैप इज लेस, फ्यूचर रिसोर्सेज द गैप इज लेस। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में गैप इज वेरी ह्यूज। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में चाइना इज 95। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, एशियान हो गया, साउथ एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका से बहुत सारे देश, रीजन और कॉन्टिनेंट्स हैं जिनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज की डेट में चाइना है। डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग में भी, इन्फ्लुएंस में भी, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग ए प्रोग्रेस एंड दे आर अहेड ऑफ अस। लेकिन सबसे बड़ा गैप यहाँ इकोनॉमी में है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में है, जिसमें इंडिया को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स लुक इनटू आवर अदर एडवर्सरी और न्यूसेंस एज वी कॉल इट, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के केस में इंडिया इज फार अहेड। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस द गैप इज वेरी ह्यूज। डिफेंस नेटवर्क्स में गैप इतना बड़ा
नहीं है जो कि बताता है कि इंडिया नीड टू वर्क ऑन इट। इसके अलावा इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसमें द गैप इज वेरी ह्यूज, फ्यूचर रिसोर्सेज द गैप इज वेरी ह्यूज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक हियर। द फ्यूचर ट्रेजेक्टरी ऑफ बोथ द कंट्रीज आर फंडामेंटली डिफरेंट। उसके अलावा रिजिलियंस में गैप बहुत है, मिलिट्री कैपेबिलिटी में गैप भी ह्यूज सब्सटैंशियल गैप है यहाँ पे, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रिटी मच विजिबल भी था। और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में भी अगर हम देखें गैप लगभग 25 पॉइंट का आता है। तो ये एक त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं है, दिस इज डायरेक्टली ए कंटेस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑब्वियसली चाइना इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज द पॉन इन द लार्जर गेम। Now, do we need such reports to establish India as a major power? India is a major power. India is a regional power. India is an emerging power. India is a potential superpower. Why? Because of sheer scale, sheer numbers of us, the ingenuity of us, India's civilizational जो एक लोकेशन है उसकी वजह से by default we are a major power. We didn't have economic heft or military capability. Even then, India's stature was huge. पंडित नेहरू के समय में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय में, India is a democracy with highest population of the world, 1.48 billion people. India is the third largest economy PPP wise, fourth largest economy अगर हम नॉमिनल बेसिस पे देखें, आफ्टर अमेरिका, आफ्टर चाइना, आफ्टर जर्मनी, और within 2 years we will surpass Germany. We are the largest country on this planet. So human resource के point of view से we are simply unmatched. Nuclear, India is a nuclear weapon state and the only country outside यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, इनकी नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। और इंडिया इज अ स्पेस पावर आल्सो, आर स्पेसक्राफ्ट have hovered around Mars, they have landed on moon. So there is no frontier of science which we are not exploring or not willing to explore. That makes India a great power, there is no doubt about it. Kya relatively India is weaker than China? Yes. Are we improving on it? Yes. Do we need to make pace on that count? Yes. So we need to grow at a rate of 8 to 9% continuously over the next few decades. आम जनता का इस पूरी जो डिबेट है इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होना है? इफ द इंडियन स्टेट, इंडियन इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग, सबसे ज्यादा फायदा एक आम जनता का ही, एक आम व्यक्ति का ही होगा। उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी ईज ऑफ लिविंग, एवरीथिंग विल इंप्रूव। ही विल हैव मोर एक्सेस टू जॉब्स, more stable economy means less inflation, predictable inflation. So there are many such things, positive things which are going to happen in the next 25 years. तो भारत अभी अमृत काल में है। By 2047 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए डेवलप्ड कंट्री। तो अगला जो 22 साल का फेज आने वाला है ये बहुत ही क्रूशल टाइम होगा, और ये जो गैप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड अमेरिका, इसे हम और ब्रिज होता हुआ देखेंगे। So definitely at the end of this lecture, I can say with all the evidence on my back that India is definitely a major power. India is definitely a potential superpower. But we should not be satisfied with our present status. We should continuously move forward in the chain that we are in, and the security architecture is changing. The world is unpredictable. There is a lot of chaos. और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का इसीलिए पावरफुल होना वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही क्रूशल है। थैंक यू।